Hello, sir. Hello, Vishalji. So first of all, very very congratulations to you Thank आपके you. नूडल अफेयर्स के लिए. Thank you, sir. Thank you. So थोड़ा सा अपने ब्रांड के बारे में बताइए. क्या आपका प्रोडक्ट है, क्या आपका निश है और किसको टारगेट कर रहे हैं जी. तो सर हमारा जो ब्रांड है, आई एम करेंटली वर्किंग विद द पेरेंट फर्म टाइप विच इज वन टू वन किचन एंड आई एम रनिंग currently one brand and two brands are still under pipeline. Mala Meal and Paratha Nation are under pipeline. Noodles Affair has been Okay. launched, and this Okay. brand is a brand which is of Asian and Chinese food, which Hmm. has a authentic flavor. Like in India, still 90% population, I believe, likes their Chinese food in desi form. Yes. Yeah, 100%. 100% they want their food to be like little bit desi yet authentic. सो Hmm. दैट वो यही चीज मैंने टारगेट की है और यही चीज को Hmm. हम आगे लेके चल रहे हैं. एकदम ऑथेंटिक ग्रेवीज, ऑथेंटिक सॉसेस, होममेड सॉसेस, एवरीथिंग इज ऑथेंटिक येट विद एन इंडियन टेस्ट. अमेजिंग अमेजिंग. आई और एम टारगेट ऑडियंस कौन है इसमें? target audience is youths and working couples and party people. My quantity Hmm. is more, my price is Hmm. low, very competitive prices, giving a good Hmm. competition in my areas to House of Chow and Barkos. अमेजिंग अमेजिंग. Yeah. नेक्स्ट मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि क्लाउड किचन ही क्यों? लाइक हाउ डिड दिस कॉन्सेप्ट केम इन? आपका पहले का पिछला बैकग्राउंड क्या था, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए जी. Yes, sir. So basically, I'm from Delhi and I'm living currently in Delhi only. And हम्म. my family background is that I'm fourth generation into hospitality business. We वाओ. have our own hotel and restaurant business. My grandfather, my great grandfather, my father, and now I am into this industry. So, being a part of this industry, I did my graduation in hotel management only from IHM हम्म. Pusa. I graduated from IHM Pusa. Then, for industrial exposure, I did my some training part of thing from JW Marriott Delhi. I was there हम्म. as a part of chef team. After that, I left that team because initially we have our own business, so I wanted to enter a new industry. This is a part of hospitality industry only, and I wanted to enter into new stream. So हम्म. 30th August was the day when I saw a Instagram post of yours, and that day हम्म. was a very rememberable and a markable day in my life, because that day was a very, like, around 100 people were there at my home for a family get together, and a family function was there, but still I allocated my time and I joined the session. So that वाओ. day I made a decision, and today I'm at the Instagram live session with you. अमेजिंग अमेजिंग. सो ये आपने गुड़गांव में लॉन्च किया, दिल्ली में लॉन्च किया, कहाँ सर लॉन्च किया? मैंने गुड़गांव में अभी लॉन्च किया है, एंड गुड़गांव इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन कॉर्पोरेट्स. My first target हम्म. was corporate catering. I entered this segment and I targeted like good corporates. I made a complete well furnished kitchen to target them with every good hygiene, because we are educated in this field, so we know the standards, how to set the standards of the kitchen and all. So I made हम्म. such kind of kitchen, but eventually everything got closed. Then I thought to start with a new start of this cloud kitchen. I हम्म. made up my brand. I got them registered, trademarked. अमेजिंग अमेजिंग. नाउ मैं ये जानना चाहता हूँ कि फोर्थ जनरेशन आपकी ऑलरेडी फूड इंडस्ट्री से थी. Yes, sir. सो क्या आपको क्लिक हुआ? लाइक व्हाई डिड यू जॉइन दिस कोर्स? तो सर प्लीज. हाँ जी. फूड पार्ट का तो ये पार्ट ये है कि जैसे अब फैमिली बिजनेस है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ही, फूड पार्ट ऐसा है जो कि हमारे खून में ही है. तो हमें हम्म. खाने की नॉलेज अच्छे से है. देन उस हम्म. नॉलेज को पॉलिश करने के लिए आई एंटर्ड इनटू होटल मैनेजमेंट कोर्स, होटल मैनेजमेंट का हम्म. कोर्स किया. अब जो टेक्निक है, लाइक जो टेक्निक, लर्निंग टेक्निक, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, और फिर जो हमारा एक्सपीरियंस है फूड का, उसको हमारे को एज अ प्रो कैसे उतरना है, दैट आई लर्न हियर. अमेजिंग अमेजिंग. इन मार्केटिंग, ब्यूटिफुल. सेटअप, मैनेजमेंट, एवरीथिंग मैंने यहीं पे ही थोड़ा इसका नॉलेज लिया. थोड़ा नॉलेज था, लाइक पॉलिशिंग, नॉलेज को पॉलिश करना और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इन सब चीज के बारे में सीखना, वो यहाँ पे किया मैंने. Amazing, amazing. So, guys, this is a big learning for all of you also. Always keep learning. जहां से जितना पॉजिटिव, जितनी चीजें आप ले सको उतना लेने की कोशिश करें और अप्लाई करते जाएं. जैसे आज विशाल सोनी जी ने अप्लाई करके नूडल अफेयर लॉन्च किया है.
सो नूडल अफेयर में आपने मल्टी ब्रांड का कॉन्सेप्ट पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, यस, राइट? यस सर, बिल्कुल मल्टी ब्रांड पे हैं, काम चल रहा है, घर पे है, शेफलेस मॉडल है। आपसे वेरी नाइस। लाइव आईजी पर हैं, और अब पाइपलाइन में एक अनाउंसमेंट आपके सामने ही कर रहा हूँ। जयपुर के अंदर नूडल्स अफेयर का टेक अवे और डिलीवरी आउटलेट लॉन्च करने की प्रिपरेशन में हूँ, फेब्रवरी में। यस। अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑलराइट, सो अभी तक लगभग आपने इसको लॉन्च कब किया था, क्या डेट थी ट्वेंटी लॉन्चिंग की? सेवेंथ अक्टूबर 2020। ओके, ओके। सो 27 अक्टूबर 2020 को आपने लॉन्च किया था। ऑलमोस्ट हम 2 महीना, दो दो महीने से महीने कम के। हुआ है अभी। यस, यस। तो लगभग कितने ऑर्डर्स अभी तक प्रोसेस हुए होंगे विशाल जी? लगभग लगभग सर अराउंड वी आर अराउंड 200 200 ऑर्डर्स प्लस, तो आपने 200 प्रोसेस कर प्लस लिए। ऑर्डर्स, 200 प्लस ऑर्डर्स। सो अभी जो ऑर्डर्स आपने बताए, 200 से ज्यादा ऑर्डर आप प्रोसेस कर चुके हो, तो प्लीज थोड़ा सा बताइए कि कैसे ये ऑर्डर्स आए, समथिंग जी, रिलेटेड टू दैट, या? जी। मैंने फोकस किया डायरेक्ट ऑर्डर्स के ऊपर ज्यादा। हम्म, मैंने फोकस किया ऑल्टरनेटिव्स ऑफ स्विगी एंड जोमेटो पे। मैंने हम्म, फोकस किया अपना वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन और अपना इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर प्रमोशन से। फिर उसके बाद हम्म, मेरे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, उनको टारगेट किया। गुड़गांव में हम्म, कॉर्पोरेट्स को टारगेट किया। और हम्म, अपने जो सेल्स टाइप के जो बॉयज हैं उनको भेजा कॉर्पोरेट्स के बाहर, उनको थोड़ा एड्रेस करने के लिए कि आप जाके हम्म, बताओ लोगों को कि हमारा ऐसा ब्रांड है, फुल हाइजीनिक है, एवरीथिंग इज हम्म, देयर, लाइक वी फॉलो कंप्लीट गाइडलाइंस। वर्किंग कपल्स और जितने भी एज फ्रॉम 15 to 25-30 पार्टी पीपल, हम्म। दे ऑल टारगेट अस, दे ऑल ऑर्डर फ्रॉम अस, एंड वंस दे ऑर्डर फ्रॉम अस वो हमसे बार बार ऑर्डर करते हैं। तो कितने परसेंटेज रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं? Around 5 to 7 times I have experienced repeat orders of a single customer. आई एम श्योर आपके घर वाले भी बड़े प्राउड होंगे, क्योंकि बिल्कुल अपने सर, दम पे एक नया ब्रांड आपने बनाया है। बिल्कुल सर, ऑफ स्ट्रीम जाके ही काम करने से ही नाम होता है सर। फैमिली हम्म, बिजनेस ही इस चीज का है, कुछ अलग करना था इसलिए पापा के ऑफिस नहीं गया, हम्म, इसलिए अपना अलग कुछ स्टार्ट किया। और आप भी क्योंकि आईएचएम से पास आउट हैं, तो आप भी शेफ ही हैं, राइट? यस, यस सर, बट बिल्कुल बट शेफ भी होकर आपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस किया, एंड आई यस लव सर। दैट पार्ट। आप मतलब ऑपरेशंस में नहीं बह गए। यूजुअली शेफ्स के साथ जो एक नहीं। चैलेंज आता है, ऑफ कोर्स वो एक प्लस है आपका, क्योंकि आपको जी, फूड की एक्सपर्टीज है, आपको नॉलेज है। लेकिन आपने बिजनेस को बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से समझ के उसको लॉन्च किया, तो आई लव दैट पार्ट। आज भी आपका आउटलेट रनिंग है, राइट? आज भी आउटलेट रनिंग है फैमिली में। पिछले सर 30 डेज से मैं मुश्किल से अभी, आप मान लीजिए दिवाली से मैं मुश्किल से अभी 2 बार आउटलेट पे ही गया हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे ब्रदर की शादी थी। फिर मेरे मतलब तीन ब्रदर्स की मेरी शादी थी। तो उन सबको मैंने अच्छे से अटेंड किया, अच्छे से एंजॉय किया है। किचन को पूरा अच्छे से मैनेज किया है। फोन पे सब कुछ मैनेज किया है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे कस्टमर के। डायरेक्ट ऑर्डर्स के लिए 2-3 बार कॉल भी आ चुका, उनको भी केटर कर दिया है। सो गाइज अगेन, सिर्फ रेवेन्यू या सिर्फ मनी काफी नहीं होता। ये जो फ्रीडम है, आज अपने फैमिली को भी टाइम दे पाना, ये बड़ी कीमती चीज होती है। तो इस तरह से सिस्टमैटिकली बिजनेस बनाए कि आप इस तरह से विशाल जी की तरह हफ्ते में दिवाली के बाद महीने भर में 2 बार गए। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कितना स्पेस आपने लिया स्टार्ट करने के लिए पहला किचन, क्या रेंटल उसका रहा? इससे रिलेटेड कुछ अगर आप अपडेट्स कर सकें। बिल्कुल। तो जैसे कि सर मैंने आपको बताया कि हम लोग ने 2019 में स्टार्ट किया था टारगेटिंग कॉर्पोरेट केटरिंग। तो हम्म, हमारा जो किचन स्पेस है, इट्स अबाउट 900 स्क्वायर फीट। हम्म, काफी बड़ा स्पेस ले रखा है, ओपन स्पेस है, हम्म, कंप्लीट ओपन स्पेस, जिसमें मेरा एक पर्सनल ऑफिस भी है। पूरा गोडाउन हम्म, स्टोर, ड्राई स्टोर है। पूरा किचन वर्किंग स्पेस है। बट अब जो मैं हम्म, नया किचन टारगेट करूंगा, इट विल बी ऑफ 300 स्क्वायर फीट मैक्सिमम। हम्म, रेंटल जो मैं गुड़गांव में अभी पे कर रहा हूँ, इट इज 25,000 प्लस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस से मिला के करीबन कोई 30,000 के आसपास हो जाता है। मैं नेक्स्ट ये जानना चाहूंगा कि मान लिया कि आपका एक्सपीरियंस था, आपके फैमिली का भी बैकग्राउंड था, बट स्टिल जब आप लॉन्च करने गए नूडल अफेयर, तो क्या चैलेंजेस आए? दिक्कतें तो आई होंगी, तो क्या थी वो बिल्कुल, दिक्कतें, कैसे उसको ओवरकम किया जी? बिल्कुल। एक से एक बढ़ के सर दिक्कतें आई। ये इंडस्ट्री एक्चुअल में दिखती है केक वॉक जैसी, बट जब इसमें एक बार घुसते हैं तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, एक नहीं बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल है, एंट्रेंस बहुत इजी है।
और इसको ही देख के वे कई मेरे को देख के ही मेरे 2-3 दोस्त ने स्टार्ट किया है, बट अब वो कह रहे हैं विशाल बंद करना पड़ेगा। तो मतलब हम्म। चैलेंजेस इतने हैं, मेरे को भी बहुत चैलेंजेस आए। मेरे को शेफ शेफ के अंदर शेफ फाइंड करने में चैलेंज आया, फिर मेरे को हेल्पर्स के अंदर चैलेंजेस आए, मेरे को लोकेशन का चैलेंज आया। शेफ्स का तो मैंने इंस्टाग्राम और ये फेसबुक अपना .com इन सब से अरेंजमेंट किया, बट आप अरेंज कर लेते हो, बट मेकिंग द शेफ अकॉर्डिंग टू योर पैलेट वो थोड़ा मुश्किल होता है। शेफ को ट्रेन करना, हम्म। शेफ को गाइडेंस देना, तो उसमें हम्म। चैलेंजेस आए मेरे को। फिर सिस्टम बनाने में चैलेंजेस आए, हम्म। पिलफ्रेज लिटिल पेटी पिलफ्रेज रोकने में चैलेंजेस आए, वो सब सिस्टम जनरेट किए, टाइम दिया उन सबको। हम्म। तो आज बैठ के मैं घर पे आपसे सेशन कर रहा हूँ सर। सो गाइस, मेहनत का काम है, इजी नहीं है। सिस्टमैटिक बनाकर आप उसको सिंपल जरूर कर सकते हो, एक एक करके सारी चीजें करते जाएं तो होती जाती है। नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि लाइक हमने क्लाउड किचन ओनर्स की कम्युनिटी भी बना रखी है, तो जी क्या कम्युनिटी से भी सपोर्ट मिला आपको? कुछ आपने सपोर्ट किया, कुछ दोस्त जी सर, बने, कुछ रिलेशन बने? दोस्त उसके बने। बारे में बताइए प्लीज। गुड़गांव के अपने गोल्ड मेंबर के 2-3 फ्रेंड्स बने सर। मेरा मन यही करता है कि मैं किसी से भी मिलूं, उसकी हेल्प करूं। रिटर्न में कभी ना कभी हेल्प अपने आप आएगी। मैंने जिस किसी से भी डेफिनेटली। मिला, मैं उसकी हेल्प करी। अजमेर से अपने गोल्ड मेंबर के कम्युनिटी के 2-3 मेंबर्स हैं, उनके केटरिंग का काम है, उनकी पैकेजिंग में इतनी हेल्प करी। दिल्ली से उनको पैकेजिंग अरेंज करवा के दी, नंबर्स दिए। स्विगी जोमेटो इंटीग्रेशन के जो ऑल ओवर इंडिया करते हैं उनके नंबर दिए। तो ये सब नंबर दिए, वेंडर्स के इतने नंबर दिए कि एक मैम थी, उनका चॉकलेट्स का काम था, उनको चॉकलेट के अच्छे वेंडर के नंबर दिए। तो सर मैंने हमेशा किसी की हेल्प करने की सोची है। अब हेल्प अपने आप मिल जाएगी लाइफ में कभी ना कभी, अब काम कर रहे हैं तो बिल्कुल हेल्प मिलेगी। Amazing, amazing. And love to have golden gems like you, golden people like you, यस, जो कि इस कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं, बिल्कुल इसको रोबस्ट बनाते हैं, और ऐसे लोग जिनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता है उनको भी अपने जैसे ही क्लाउड किचन ओनर्स बनने में हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बिल्कुल सर। अच्छा, एक और चीज मैं थोड़ा कोर्स से रिलेटेड भी पूछूंगा, क्योंकि कई लोग थोड़ा डाउटफुल रहते हैं। आपके जी मन में जी। कभी कोई डाउट आया है स्टार्टिंग में? आपको वो क्या चीज थी जो ट्रिगर की, जिसकी वजह से आपने स्टार्ट किया? और स्टार्ट किया तो कि इजी थी लैंग्वेज या टफ था सीखना? क्योंकि उसके बाद हर बार मैंने टास्क भी दिए हैं, तो वो टास्क आपने किए। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा वो जर्नी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा प्लीज। जी, तो एक्सपीरियंस लर्निंग करा, उसको इम्प्लीमेंट किया हैंड टू हैंड, और फिर हम्म। उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बिकॉज हम्म। एक पेपर वर्क की आप वर्किंग करते हो और फिर एक आप प्रैक्टिकल में जब उतरते हो तो थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम्म। उसमें थोड़ा बहुत आता है। अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। वो किया, जो आपकी लर्निंग सीखी, जो कोर्स में जो हमने डॉक्यूमेंट होमवर्क करे और वो पूरा स्प्रेडशीट्स वगैरह बनाए और अपना हम्म। चार्ट्स प्रिपेयर किए। लर्निंग इज इजी। लर्निंग हम्म। प्रोसेस, आपने वो प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया, जो कि आदमी गोल घूम जाता है उसमें। वो हम्म। प्रोसेस वाइज, क्राइटेरिया वाइज जब कुछ सब कुछ एकदम सेग्रीगेट हो गया, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको प्रैक्टिकलिटी में लेके आना, एक स्मूथ प्रोसेस हो जाता है। जो मैंने पहले कोशिश करी थी खुद, वो हो नहीं पाई थी हम्म। इतनी स्मूथली। बट अब सीखने के बाद इसको प्रैक्टिकलिटी में लेके आना एक स्मूथ प्रोसेस हो गया। डेफिनेटली एक काफी अच्छा, और एक कहते हैं एक हाईवे मिल गया। वही जो मोड़ वाली बात हुई थी कि पता है कहाँ तक कितनी स्पीड पे जाने, वो काम हो गया। काफी इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी, जिस तरीके से आपने लॉन्च किया है, और मुझे लगता है कि बहुत ही रॉक सॉलिड स्टार्ट है। और ये आगे नेक्स्ट जैसे ही आप ब्रांड्स एक्सप्लोर करोगे, यस, प्रॉफिटेबिलिटी एकदम रूफटॉप, एकदम जे कर्व बनाएगी। और साथ में सिस्टम्स पे तो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। बिल्कुल अपने सर। अपने आप को ये फ्री रखने का जो इंटेंशन है, इसको कैरी फॉरवर्ड अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली एक सुकून के साथ एक अच्छा बिजनेस सेटअप होगा। ब्रांड पे आपने काफी अच्छा काम किया है, मुझे पर्सनली बड़े अच्छे लगे थे आपके डिजाइन्स। बहुत सारे लोग आज आपको इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं, और वो भी आपकी तरह लॉन्च करना चाहते हैं। कुछ लोग जी, डाउट्स में हैं, कुछ लोग अभी भी, आपने अभी इतना सारा बोल दिया है कि बहुत मेहनत लगती है तो कुछ लोग थोड़ा सेटबैक भी कर जाएंगे, डर भी जाएंगे। नहीं तो नहीं, उनके लिए एक मैसेज जो आप देना चाहोगे प्लीज। एक मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि जर्नी, एंट्रेंस इजी है। मेरा थोड़ा, मैं प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करता हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड हम्म। थोड़ा बोलना सर अच्छा रहता है। प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं यही समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा है, बट
इसके अंदर इतना है कि अगर आप 10% दोगे, आपको स्टार्टिंग में 8% या 5% मिलेगा, जिससे कई लोग घबरा जाते हैं। वो घबरा करके नहीं, अगर वो कंटिन्यूटी रखते हैं, वो 10% आगे आने वाले टाइम में 1000%, 2000% तक देगा। मेहनत है इस काम में, डेडिकेशन है इस काम में, रात काली करी है स्टार्टिंग में मैंने, सुबह 8 बजे जाके रात को 2-2 3-3 बजे आया हूँ। डेडिकेशन है, मेहनत है, बट वो मेहनत रंग जरूर लेके आती है। ऐसा नहीं है कि इससे डर के ड्रॉबैक या विड्रॉ कर लेना है, बट कंफर्ट जोन में रह के ये इंडस्ट्री आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, कंपटीशन आपको बढ़ने नहीं देगा। इसलिए पहले से ही सतर्क कर दिया कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको डेडिकेटेड रहना है, आपको कंफर्ट जोन त्यागना है, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। वाओ, सच अ नाइस मैसेज फॉर जो भी लोग इंस्पायर कर रहे हैं आज, और वो भी अपना फ्यूचर में क्लाउड किचन लॉन्च करना चाहते हैं। कितना प्यारा मैसेज दिया। डेफिनेटली स्टार्टिंग में 10 का 8 ही मिलता है, लेकिन फ्यूचर में अगर आप लगे रहते हो तो 1000 2000 भी है। लाइक जो बिगनर्स हैं, जो जो अभी मे बी इस कोर्स के बारे में भी जानते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाए हैं किसी भी रीजन से, सो उनके लिए क्या रिकमेंडेशन देना चाहोगे? वुड यू सजेस्ट देम और व्हाट? थोड़ा सा प्लीज। बिल्कुल सर, अब मैं अपना एग्जांपल लूं, मैं तो जानता था इस इंडस्ट्री को अच्छे से, इस इंडस्ट्री में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ, फिर भी मैंने आपका सर का कोर्स लिया। मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं कहीं ना कहीं चूक रहा हूं, जहां तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, और ये अभिनव सर मेरे को लेके जाएंगे उस स्टेप तक। बट मैं ये जानता हूँ कि ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, और ये कोर्स ने मेरे को इतनी इन डेप्थ नॉलेज दी है, तो उन लोगों के लिए तो सर ये अमृत है। मतलब जो इस चीज को ज्वाइन करना चाहता है, इस लाइन में आना चाहता है, क्लाउड किचन इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए ये अमृत और रामबाण दोनों है। अगर ये ज्वाइन करेंगे ना सर, तो मैं बिलीव करता हूँ उनके 98-99% तक जो इनके विजन है वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, किस तरह करना है, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। और डेफिनेटली 100% रिकमेंड करता हूँ मैं, जो जो ये इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस क्लाउड किचन ग्रुप कम्युनिटी में आना चाहते हैं, बिकॉज क्लाउड किचन इज द फ्यूचर। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह सेटबैक हुई है, मैं खुद इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। हमारा रेस्टोरेंट भी है, होटल्स भी है, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा रेवेन्यू सेटबैक है। तो ये क्लाउड किचन इज फ्यूचर, एंड दिस इज अ वे टू द फ्यूचर, दिस कोर्स इज द वे टू द फ्यूचर। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर द रिकमेंडेशन। सो ऑल द वेरी बेस्ट विशाल जी, बहुत अच्छा लगा बात करके, फ्यूचर में फिर बात करेंगे। थैंक यू।